Hello Techno Savies. In this video, we will cover all the important questions of DBMS. All the questions which we are going to discuss in this video have highest probability to come in exam. First, we are going to discuss very short question answers which you will find in section A. So first question is, how is data organized in RDBMS? आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि टेबल में ही सिर्फ डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. सो आंसर विल बी टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल डैश एंड हॉरिजॉन्टल डैश. वर्टिकल क्या होते हैं? जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो दीज आर कॉलम्स. एंड हॉरिजॉन्टल क्या होती हैं? जो लेफ्ट टू राइट जाती हैं, दोज आर रोज. सो आंसर विल बी वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज. क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज सेट ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, वन फॉर ईच रो ऑफ टेबल. सो डेटा वैल्यूज का सेट क्या बोलेंगे हम? टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल. सिंगल डेटा आइटम, जैसे कि जब हम टेबल रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें हमारे पास अगर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो वो रो होता है. रो क्या होता है? रिकॉर्ड. तो एक स्टूडेंट के बारे में सिंगल डेटा को जो सेव कर रहा है उसको बोलते हैं रिकॉर्ड. क्वेश्चन नंबर 5, डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन द डेटाबेस. तो जब हम डेटा सेव करते हैं तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो मैंने आपको बताया था कुछ डेटा टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ इंटीजर भी हो सकता है. तो किस टाइप का डेटा हम उस फील्ड में एंटर करने जा रहे हैं? इट इज़ कॉल्ड डेटा टाइप और फील्ड टाइप. क्वेश्चन नंबर 6, डैश DDL कमांड इज यूज टू क्रिएट अ टेबल. I told you which command is used to create a table? Create table command. So answer will be create table. Next question. A dash is a part of DML involving information retrieval only. Retrieval means to get back. So only select command is used to take the records. That means answer will be select command. Question number 8. A popular data manipulation language is dash. It is the name of the language and you should say MySQL. Question number 9. Common DDL statements are dash, dash and dash. I told you in the last video, DDL commands are the commands which are used to define the table or it is related to table structure. So create, alter and drop commands are the DDL commands. Question number 10. State the relation and difference between a primary and a foreign key. Primary key and foreign key. Both keys are used to uniquely identify the records, but the difference is primary key search in the same table and foreign key search it in another table. Question number 11. Dash is a standard for commands that define the different structures in database. Those are DDL commands because they define the structure. Define DDL. Question number 12. 3 popular DBMS softwares are. There can be many softwares which are DBMS software. The most famous popular DBMS softwares are OpenOffice, Base, MySQL, LibreOffice Base and Microsoft Access. These are the names of softwares. Question number 13. A dash helps the user to systematically store information in database. Answer will be tables. Question number 14. What is primary key and composite key? Primary key लास्ट वीडियो में भी आपको बताया, एक ऐसी कॉलम जो कि रिपीट वैल्यू अलाउ नहीं करता, उसको बोलते हैं प्राइमरी की, जैसे कि रोल नंबर. नेक्स्ट है कंपोजिट की. कंपोजिट की क्या है? एक टेबल में एक से ज़्यादा कीज ऐसी हो सकती हैं जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ नहीं होती. उन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके टेबल में जब रिपीट वैल्यू अलाउ नहीं करता
तो उसको बोलते हैं कंपोजिट की. कंपोजिट की मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 कीज. Next question, question number 15. What is the extension of database? It is ODB. Now we will discuss short question answers, which will be of 2 marks in your exam. First question is, in how many ways a table can be created in base? If we talk about base, then we have 3 ways to design a table. First is in design view, second using wizard, and third SQL view. Next question is, write the purpose of DBMS. किस लिए बनाते हैं हम DBMS? रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली सेव करने के लिए और उसको एक ऐसे स्पेस पे सेव करने के लिए जहाँ से हम उसका डेटा शेयर कर सकें. सो आंसर विल बी DBMS is used to store logically related information at a centralized location. It facilitates data sharing among all the applications requiring it. जिस application को इस data की ज़रूरत है वहाँ पे हम उसको share कर सकते हैं. Next question is, define the structure of a table or what is a table. Now you tell, what is a table? Table is a combination of rows and columns, or we can say set of data elements. सारे elements जो हमने rows and columns के form में set कर दिए. A table has a defined number of columns but can have any number of rows. क्योंकि column में जब हम table का structure define करते हैं तो column की नंबर हम डिफाइन कर देते हैं, बट रोज़ जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है, जितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में या जो भी हमें एंट्री करनी है वो हम कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन रोज एंड कॉलम्स और वी कैन से टपल्स और एट्रीब्यूट्स. रोज आर कॉल्ड टपल्स एंड कॉलम्स आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स. रोज क्या होती हैं? रोज़ होते हैं हमारे रिकॉर्ड्स, जैसे रिकॉर्ड ऑफ रोल नंबर 1, रिकॉर्ड ऑफ रोल नंबर 2. तो रोज़ क्या हो गई हमारी? कलेक्शन ऑफ आइटम्स विच रिप्रेजेंट अ कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ थिंग और अ पर्सन. जैसे कि हमने बोला रिकॉर्ड नंबर 1 या रोल नंबर 1, तो वो क्या करेगा? रोल नंबर 1 की पूरा रिकॉर्ड रखेगा, हॉरिजॉन्टली सेव करेगा. अ टपल इज़ ऑल्सो नोन एज रिकॉर्ड. रिकॉर्ड बोल लो, टपल्स बोल सकते हैं या रोज़ भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज कॉलम्स. कॉलम्स क्या है? हमारे वर्टिकल अलाइंड जो हमारा इंफॉर्मेशन पीस है, दैट इज़ कॉल्ड कॉलम्स. कॉलम्स को हम फील्ड भी बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं, और कॉलम्स तो हैं. ये हमारे वर्टिकली अलाइन होते हैं. इसमें जो एक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि रोल नंबर या नेम, उसमें एक ही टाइप की इन्फॉर्मेशन होगा. जैसे नेम है तो सारी वैल्यूज़ क्या होंगी? टेक्स्ट होंगी. जबकि रोज़ में ऐसा नहीं होता. रोज़ में अगर हम रोल नंबर 1 की बात कर रहे हैं तो कहीं नाम सेव करेंगे, फिर उसका रोल नंबर सेव करेंगे, मार्क्स सेव करेंगे. तो जितने हमारे पास उसके आइटम्स होंगे सबका डेटा टाइप अलग अलग होगा. इसको हम इस एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं. मैंने यहाँ पर एक पिक्चर शो की है. जैसे इस इमेज में हमारे पास कॉलम्स जो हैं वो वर्टिकल शो किए हुए हैं और रोज़ जो हैं वो हॉरिजॉन्टल शो की हुई हैं. नंबर ऑफ कॉलम्स आर 7 इन दिस टेबल. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग? इन हाउ मैनी वेज इट कैन बी डन. सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग मीन्स अरेंज करना, डेटा अरेंजमेंट. तो डेटा अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और यू कैन से असेंडिंग और डिसेंडिंग. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन which comes almost 98% in your exam. What is referential integrity? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है? ये हमारे डेटा को चेक करता है क्या वो डेटा ठीक है या नहीं है, बट सिर्फ एक टेबल में नहीं, 2 टेबल में. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी refers to the accuracy and consistency of data within a relationship in base. Data can be linked between 2 or more tables with the help of primary key and foreign key constraint. प्राइमरी की और फॉरेन की को यूज़ करके जब डेटा में डुप्लीकेसी चेक होती है, एक्यूरेसी चेक होती है, तो उसको बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं?
क्या करती है ये? इट हेल्प्स टू अवॉइड एडिंग रिकॉर्ड्स इन रिलेटेड टेबल विच इज़ नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी की टेबल। जैसे हमने दो टेबल बनाई हुई हैं, एक टेबल में टर्म 1 के मार्क्स हैं, एक टेबल में टर्म 2 के मार्क्स हैं। टर्म 1 में अगर कोई बच्चे के मार्क्स हैं ही नहीं और हम उस बच्चे के मार्क्स टर्म 2 में डालना चाहते हैं, तो ये हमें वार्न कर देता है कि वहाँ पर ये डेटा एब्सेंट है। Changing values in primary table if any dependent records are present in associate table। हमारे पास दो तरह की टेबल होती है, एक होती है प्राइमरी टेबल जो हमारी मेन टेबल है, दूसरी होती है एसोसिएटेड टेबल और वी कैन से डिपेंडेंट टेबल। तो दोनों की वैल्यूज़ में चेंज कर देता है एक दूसरे से अफेक्ट होके। नेक्स्ट इज डिलीटिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द प्राइमरी की टेबल if there are any matching related records available in associated table। अगर associated table में कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो प्राइमरी में नहीं है तो वो वहाँ से उसको डिलीट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ, थ्योरी वीडियो में, कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे डेटाबेस के। सबसे पहला एडवांटेज होता है कि डाटा रिडंडेंसी को मींस डुप्लीकेसी को कम कर देता है। सेकंड क्या है? डेटा को हम शेयर कर सकते हैं। थर्ड, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। It secures data, so data security is there and privacy too. Backup and recovery, if we have the chance of damaging devices, then we can take the backup and have recovery. Last one is data consistency, that we can check that data is consistent or not. Next question is what is candidate key? अब candidate key क्या है? वो सारी कीज़ जो प्राइमरी की के लिए एलिजिबल थी बट वो प्राइमरी की बन नहीं पाई या हमारी चॉइस से हमने उसको प्राइमरी की नहीं बनाया, वो सारी कीज़ क्या हैं? कैंडिडेट की हैं। जैसे कि स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, एडमिशन नंबर, सभी प्राइमरी की हो सकती हैं बट प्राइमरी की एक ही होती है। तो जितने भी कीज़ प्राइमरी की बन सकती थी उनमें से एक को हमने प्राइमरी की बना दिया, बाकी जो बची वो सब क्या है? कैंडिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन क्वेरी। क्वेरी इज रिलेटेड टू क्वेश्चन। जब हम पूरे टेबल में से एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि रोल नंबर 1 का फादर्स नेम क्या है, जैसे मैंने कमांड दी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1, तो रोल नंबर 1 की इंफॉर्मेशन मांगी, पूरी टेबल की इंफॉर्मेशन नहीं ली, दैट इज क्वेरी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर RDBMS. In the next video we will cover next chapter, that is web security. See you then. If you have any queries or questions you can write comment to me. I will answer within 24 hours. Good luck.